हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ हेड एंड नेक एनाटॉमी। हम साइड ऑफ द नेक वाला चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और आज के टॉपिक का नाम है पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक। इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए और नेक रीजन वैसे ही इंपॉर्टेंट है, मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को। आइए स्टार्ट करते हैं। पोस्टीरियर ट्रायंगल इज द स्पेस ऑन द साइड ऑफ द नेक situated behind the sternocleidomastoid. Okay, तो ये बात अब आपको कोई नई नहीं है आपके लिए, this is nothing new for you that we have sternocleidomastoid और इसके बैक साइड पे जितनी भी स्पेस है this is all the posterior triangle. एक्चुअली इसकी अभी बाउंड्रीज भी आपको बताऊंगा। तो एक तरफ sternocleidomastoid है और बैक साइड पे posteriorly there is trapezius. Okay, so it is all this space which is situated between actually sternocleidomastoid and trapezius. Okay, so this is behind sternocleidomastoid. Now boundaries: anteriorly there is posterior border of sternocleidomastoid and posteriorly there is anterior border of trapezius. अब इन वर्ड्स पे जरा फोकस करें आप कि what is the anterior boundary? The anterior boundary is actually the posterior border of sternocleidomastoid. यहाँ इस तरह से there will be sternocleidomastoid, all of this, ये इसका anterior border है और ये posterior border है। तो जो posterior border है वो actually posterior triangle का anterior border है, ठीक है। और posterior triangle का posterior border क्या होगा? This one, trapezius का anterior border. So this space जो इन दो muscles के बीच में है, all this space is the posterior triangle of the neck. एंड इंफीरियर या बेस का जो पार्ट है पोस्टीरियर ट्रायंगल का वो क्या है? मिडल 1/3 ऑफ क्लैविकल। बिकॉज अगर आप इसको विजुलाइज करें सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि look at this diagram here for example. So this is posterior triangle. I am drawing this between different borders. Sternocleidomastoid है यहाँ पर और यहाँ पर trapezius. Inferiorly क्या है देखें? Inferiorly there is clavicle का middle portion. So middle part of clavicle, middle 1/3 of clavicle is basically the base of the posterior triangle of the neck. Okay, now apex lies on the superior nuchal line where the trapezius and sternocleidomastoid meet. So ये है trapezius, ये है sternocleidomastoid जहाँ पर ये meet करते हैं। This area is the top area. Okay, so this is the apex area. So ये आपको चार borders याद होने चाहिए examination purposes के लिए posterior triangle of neck के। The anterior border which is posterior border of the sternocleidomastoid, the posterior border which is anterior border of trapezius, the base which is middle third of the clavicle, and the apex is near the superior nuchal line जहां sternocleidomastoid और trapezius आपस में मिलते हैं। राइट नाउ द रूफ का मतलब ये है कि सुपरफिशियली क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सुपरफिशियली ऑब्वियसली स्किन होगी, फिर सुपरफिशियल फेशिया एंड देन इमीडिएट रिलेशन में है इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। मेरी पिछली वीडियोस अगर आप देखेंगे इसी प्लेलिस्ट की तो उसमें हमने जिक्र किया था कि जो डीप फेशिया है नेक का, इनफैक्ट इसी चैप्टर में हमने पढ़ा है। सो अगर आप एक दो पुरानी वीडियोस देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि डीप फेशिया ऑफ द नेक इज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, जिसमें से एक है इन्वेस्टिंग लेयर। सो द इन्वेस्टिंग लेयर सराउंड्स द होल नेक लाइक अ कॉलर and superficial fascia over the posterior triangle is also present in the roof. Other things which are present, posterior triangle के ऊपर क्या क्या मौजूद होता है as a roof? Platysma muscle which is a superficial muscle, you know this already, and external jugular and posterior external jugular veins, parts of supraclavicular, great auricular, transverse cutaneous and lesser occipital nerves. अगर हम ये diagram देखें, so you see here this is sternocleidomastoid muscle, this is trapezius, so this is all the posterior triangle of the neck. और इस posterior triangle of the neck में superficial structures क्या क्या हैं? External jugular vein, so there is external jugular vein and these cutaneous nerves, और वो cutaneous nerves कौन कौन सी हैं? You see here we have lesser occipital nerve, here we have spinal root of accessory, this is also in the posterior triangle, we have supraclavicular, we have transverse cutaneous, so all these nerves are present here in the posterior triangle. Then there are so many unnamed arteries and some lymph vessels. Now external jugular जो vein है which is crossing the sternocleidomastoid basically और base of the posterior triangle में it is attached by the fascia, the deep fascia, और इसके बारे में हमने पहले भी बात की है कि it is actually attached to the deep fascia. ठीक है, यहाँ पे देखें क्या कह रहा है? External jugular vein lies deep to the platysma. It is formed by the union of posterior auricular vein
विद पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द रिट्रोमैंडिबुलर। सो पोस्टीरियर ऑरिकुलर और रिट्रोमैंडिबुलर मिलके बनाते हैं एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं पोस्टीरियर एक्सटर्नल जुगुलर वेन, ट्रांसवर्स सर्वाइकल वेन, सुप्रास्कैपुलर एंटीरियर। ये हम जब वेनस ड्रेनेज पढ़ेंगे पूरे नेक का, जो मेजर ब्लड वेसल्स स्टडी करेंगे, उसमें ये टॉपिक फिर रिपीट होगा। इस वक्त अब तक की जो बात हमने की वो ये कि पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक है क्या, पोस्टीरियर ट्रायंगल की बाउंड्रीज क्या क्या हैं, और इसकी रूफ में क्या क्या कौन कौन से कंटेंट्स हैं। ओके, राइट। जब कभी एक्सटर्नल जुगुलर वेन का नाम आएगा, सो देयर इज ऑलवेज सम क्लिनिकल स्टफ एसोसिएटेड विद दिस, कि एक तो हमेशा ये बात आएगी एक्सटर्नल जुगुलर वेन से रिलेटेड कि इट इज पियर्सिंग द डीप फेशिया ऑफ द नेक एट द बेस ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल। और जहां पे ये डीप फेशिया को देखें पियर्स करता है ना, द वॉल ऑफ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन इज एक्चुअली बाउंड बाय द डीप फेशिया। तो होता ये कि अगर ये किसी वजह से कट कर दें आप वेन, तो ये वाला पार्ट जो है ये कोलैप्स नहीं होता और वेन ओपन रहती है, जिसकी वजह से एयर एम्बोलिज्म कैन ट्रेवल इवन सो मच सो इट कैन कॉज डेथ। तो ये पॉइंट हमेशा डिस्कस होता है एक्सटर्नल जुगुलर वेन के हवाले से। द अदर थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एक्सटर्नल जुगुलर वेन, दैट इट इज अ वेन एग्जामिन टू असेस द वेनस प्रेशर, द राइट एट्रियल प्रेशर, क्योंकि ये डायरेक्टली राइट एट्रियल प्रेशर की रिप्रेजेंटेटिव है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, बिकॉज इस पूरी वेन में आपको कोई वाल्व्स नहीं मिलते। तो जो प्रेशर एक्चुअली एक्सटर्नल जुगुलर वेन में है, यू कैन अज्यूम दैट द सेम प्रेशर इज ऑल्सो इन द राइट एट्रियम। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स अबाउट द एक्सटर्नल जुगुलर वेन। ओके, सो रूफ की बात हो गई। अब बात करते हैं फ्लोर की। फ्लोर का बेसिकली मतलब ये है कि डीप स्ट्रक्चर्स नेक के क्या हैं। द फ्लोर ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल इज फॉर्म बेसिकली बाय डीप सर्वाइकल फेशिया की प्री वर्टिब्रल लेयर एंड सम मसल्स विच आर splenius capitis, levator scapulae, scalene medius, and semispinalis capitis. Let me find the relevant diagram for you. So if you look at this diagram, यहाँ से external jugular vein हटा दी है और बहुत सारे structures remove कर दिए हैं, but you see at the back there are some muscles. You see this is the muscle here, the scalene medius muscle. We have a muscle here, we have a muscle here, we have a muscle here. तो ये जितने भी muscles आपको back पर नजर आ रहे हैं, ये सारे muscles actually floor बनाते हैं पोस्टीरियर ट्रायंगल का। सो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ द नेक का जो फ्लोर है, इट इज मेड अप बाय इन लार्ज दीज मसल्स। ओके, ऑल दीज मसल्स। नाउ posterior triangle itself जैसे anterior triangle है, it is divided into many different parts। बिल्कुल इसी तरह the posterior triangle is also divided into a larger upper part which is called occipital part and a smaller lower part which is called supraclavicular part. The supraclavicular part is also called the subclavian part. Let us figure this out in a diagram. So this for example is the diagram, and in this diagram if you focus, there is the muscular belly. So this muscular belly, you can see this is the cut belly here, this is the muscle part and this is the muscle part, और ये muscle कौन सा है? omohyoid muscle. Now this omohyoid muscle यहाँ चूंकि काट दिया है, अदरवाइज इसके फाइबर्स बिल्कुल इस तरह से होते हैं, completely like this. So omohyoid muscle के ऊपर एक ट्रायंगल का पार्ट है, posterior ट्रायंगल का पार्ट, और एक छोटा पार्ट है जो omohyoid muscle के नीचे है. So जो नीचे वाला पार्ट है, that you can see here, this bit, and the upper part is the larger part which you can see here. So इसका जिक्र हो रहा है कि the posterior triangle of the neck is divided into the large upper part which is the occipital part. दोबारा देखते हैं डायग्राम में, this is the large part which is the upper part, occipital part omohyoid muscle के ऊपर है, और omohyoid muscle के नीचे जो part है that is known as the either supraclavicular or subclavian part. So this is an important heading for you to remember कि posterior triangle की further divisions क्या क्या होती हैं. So posterior triangle is divided into two parts. ठीक है. अच्छा, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है contents of the posterior triangle. देखो, नेक का जो टॉपिक है ना, इसमें अक्सर स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते हैं, डरते हैं कि यार पता नहीं किस तरह से इसको समझें, याद करें, और ये बात सही भी है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ कुछ कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल लिखे हुए हैं, अगर मैं इसको पढ़ना शुरू करता हूँ ना, तो आप परेशान हो जाएंगे, बेसिकली घबरा जाएंगे. फॉर एग्जांपल एक कंटेंट है स्पाइनल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व emerges a little above the middle of the posterior border of the sternocleidoid muscle and then it runs through the tunnel in the fascia. Oh my god, हर कंटेंट के बारे में इतनी कहानी लिखी हुई है कि आप पढ़ के ना परेशान हो जाएंगे.
ऐसी जगहों पे जब एनाटमी इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड और बोरिंग और डिफिकल्ट हो जाती है, देन देयर इज ऑलवेज अ ट्रिक टू बी यूज्ड, देन यू हैव टू स्टडी स्मार्ट। आपको कोई ट्रिक स्टडी करनी पड़ती है, कोई स्मार्ट स्टडी की टेक्निक ढूंढनी पड़ती है। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल में कंटेंट्स ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल को पढ़ने का स्मार्टेस्ट तरीका यह है कि इस टेबल पर फोकस किया जाए, और ये टेबल है टेबल नंबर 3.1। सो नाउ लुक हियर एट दिस टेबल। So in this table, they have divided the posterior triangle into two parts. जो part omohyoid muscle के ऊपर था, which was the occipital triangle, उसके contents यहाँ लिखे हुए हैं left side पर, और जो subclavian triangle का part था, यानी कि omohyoid muscle के नीचे का जो part था, उसके contents यहाँ लिखे हुए हैं। So again, if you look at this diagram, where is this diagram? Let me rub this a little bit, थोड़ा सा clean हो जाए ताकि we can focus on what we want to study. So this is omohyoid. ये जो upper part है इसके contents अलग से बताए हुए हैं, और ये जो lower part है इसके contents अलग से बताए हुए हैं। So this upper part is also called the occipital part, और मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीपिटल पार्ट, एंड दिस इज कॉल्ड सुप्राक्लेविकुलर पार्ट या सबक्लेवियन पार्ट। अब ये जो टेबल है ये आपकी समझ में आ गया कि हाउ टू स्टडी एंड अप्रोच द टेबल। द टेबल हैज डिवाइडेड पोस्टीरियर ट्रायंगल इनटू ऑक्सीपिटल ट्रायंगल के कंटेंट्स एंड सबक्लेवियन ट्रायंगल के कंटेंट्स। अब वो जो कंटेंट्स इटसेल्फ हैं वो इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं फॉर योर ईज इनटू आइदर नर्व्स और वेसल्स और लिम्फ नोड्स। तो ऑक्सीपिटल पार्ट में भी नर्व्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं और लिम्फ नोड्स हैं, और सबक्लेवियन पार्ट में भी नर्व्स हैं, वेसल्स हैं और लिम्फ नोड्स हैं। सो अगर आप ये टेबल मास्टर कर लेते हो तो फिर आपको ये इतनी सारी डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू स्टडी स्मार्ट ताकि चीज़ें आपको याद रहें, रादर देन स्टडी डिफिकल्ट थिंग जो कि आपको कंफ्यूज भी करे, आपको समझ भी ना आए और आप परेशान अलग हो जाए। ठीक है, सो आइए इस पर फोकस करते हैं। ऑक्सीपिटल ट्राइंगल जो कि पोस्टीरियर ट्राइंगल का अपर पार्ट है, उसमें नर्व्स कौन कौन सी हैं? उसमें है स्पाइनल एसेसरी नर्व, और इसने यहाँ फिगर बताई हुई है। हमेशा टेक्स्ट को कोरिलेट किया करें फिगर के साथ। सो लेट अस हैव अ लुक एट फिगर 3.9. So 3.9 is for example here. So can you tell me where in this diagram do you see the spinal accessory nerve? So the spinal accessory nerve is an important content of the upper part of the posterior triangle. देखो गौर से सुनो इस बात को। ये मसल बैली अगेन आपको नजर आ रही है, ये मसल बैली है किस चीज की? ओमोहायोइड मसल की। सो दिस इज द ओमोहायोइड मसल। ओमोहायोइड मसल के ऊपर ये जितना भी पार्ट है, ऑल दिस पार्ट इज द लार्जर ऑक्सीपिटल पार्ट। ठीक है, और इसके नीचे ये जितना भी पार्ट है, छोटा सा पोर्शन, दिस छोटा सा पोर्शन इज द सबक्लेवियन या सुप्राक्लेविकुलर पोर्शन। अब हम बात कर रहे हैं स्पाइनल एसेसरी नर्व की। सो दैट इज द एसेसरी नर्व हियर, दैट बिग स्ट्रक्चर, दिस एसेसरी नर्व। नाउ यू कैन टेल मी, इज इट इन द पोस्टीरियर ट्राइंगल? यस, बिकॉज ये स्टर्निक्यूलोमास्टोइड है और ये ट्रेपीजियस है, इसके बीच में ये पूरा पोस्टीरियर ट्राइंगल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पोस्टीरियर ट्राइंगल के किस पार्ट में है ये? upper larger part में. So that is the first structure that you have to remember, the accessory nerve. What are the other nerves? Second structure, 4 cutaneous branches of cervical plexus. जो cervical plexus है उससे 4 cutaneous branches हैं, lesser occipital, great auricular, anterior cutaneous nerve of neck and supraclavicular. ये चारों आपको दिखेंगे इसी डायग्राम में, either this one or let me show you here. So you see there are the cutaneous branches, greater auricular, lesser occipital, transverse cutaneous nerve. So these are all the superficial branches of cervical plexus and they are also in the posterior triangle. ठीक हो गई बात। अब और क्या है जनाब occipital part of posterior triangle में? We saw के spinal accessory nerve किधर है? We saw the cutaneous branches of cervical plexus. Now there are some muscular branches which you can locate in the diagram, and then comes the blood vessels. There is an occipital artery and transverse cervical artery and vein. So if we go back and try to find where is transverse cervical artery and vein, let me find. So here you can see this particular diagram shows you transverse cervical artery. It is also in the, you see here, this is also in the supraclavicular part of the triangle, but this is also in the occipital part of the triangle, transverse cervical artery. So these blood vessels are there. What else is there? Some lymph nodes. कौन से lymph nodes? Along the posterior border of the sternocleidomastoid,
More in the lower part are supraclavicular nodes, and a few at the upper angle, the occipital node. So these two types of lymph node groups are there. So ये है जनाब occipital triangle, जो कि posterior triangle का upper part है. अब बात करते हैं subclavian triangle की. Subclavian triangle पोस्टीरियर ट्रायंगल का लोअर पार्ट है, और उसमें कौन सी नर्व्स होती हैं. नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपके अपर लिम्ब को कौन सा प्लेक्सिस सप्लाई करता है? ब्रेकियल प्लेक्सिस. तो ब्रेकियल प्लेक्सिस में इफ यू रिमेंबर देयर आर रूट्स एंड ट्रंक्स, और ये सारे रूट्स और ट्रंक्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस पोस्टीरियर ट्रायंगल के सबक्लेवियन पार्ट में होते हैं. ऑल्सो नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, नर्व टू सबक्लेवियस एंड सुप्रास्कैपुलर नर्व. सो इफ यू quickly look at this diagram, for example, let me rub this out ताकि कुछ चीजें क्लियर हो जाए. सो यू सी ये ओमोहाइड मसल को लोकेट करें कहाँ है? दिस इज ओमोहाइड मसल. सो दिस इज द डिवीजन लाइन. इस लाइन के ऊपर सारा जितना कुछ है दैट इज ऑल द अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक. इस पार्ट के नीचे सारा कुछ में ये नर्व्स नजर आ रही हैं, बड़ी बड़ी नर्व्स. दीज आर द ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल plexus. So these big ones, okay? And then this big nerve is the scalene anterior nerve along with the phrenic nerve. So major nerves. Basically ये part of the neck जो है इसमें से सारी upper limb की supply गुजर रही है. So this is a very important part of the side of the neck. So all these nerves, okay? Now which blood vessels are present in the subclavian part? Subclavian part का दूसरा नाम क्या था? Supraclavicular part. मैं बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपसे ये चीज मिस ना हो जाए, इसको बिल्कुल भी भूल ना जाए. ओके, नाउ ब्लड वेसल्स हैं थर्ड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड सुप्रास्कैपुलर आर्टरी, आल्सो ट्रांसवर्स स्कैपुलर आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी का पार्ट एंड लोअर पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल जुगुलर वेन. ये सारी वेसल्स गुजरती हैं इस छोटे से ट्रायंगल से. एंड देन द लिम्फ नोड्स, सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स. सुप्राक्लाविकुलर लिम्फ नोड्स आर स्प्रेड in this part as well as in this part. You see, supraclavicular lymph node. So basically this is the table that you have to master. और इसकी जो accompanying diagrams हैं वो ये diagram है और 3.9 ये वाली diagram है. So these are the two diagrams which are accompanying diagrams. इसके साथ I don't recommend reading this. उसकी रीजन ये क्योंकि ये पढ़ोगे कंफ्यूज हो गए. फॉर एग्जांपल आप पढ़ें जरा इसको. 4 कुटेनियस ब्रांचेस गुजरती हैं जनाब अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक से, और वो कौन सी हैं? ट्रांसवर्स कुटेनियस अराइजेस फ्रॉम द वेंट्रल रेमाई ऑफ ब्लड सप्लाई. ओह माय गॉड, दिस इज टू मच डिटेल. सो इफ यू फॉलो डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स, फॉलो द एडवाइस, स्टडी smart, save your brain for important stuff. This is not high yield. This was high yield table and I spent quality time on this. Okay, now some important clinical stuff. The most common swelling in the posterior triangle is due to enlargement of the supraclavicular lymph node. और ये सबसे कॉमन, आपको अगर कोई पेशेंट कंप्लेन के साथ आता है क्लिनिक में with swelling in the posterior triangle of the neck, the most common complaint is basically due to enlargement of supraclavicular lymph nodes. While doing biopsy of the lymph node, one must be careful in preserving the accessory nerve, because accessory nerve, देखें ये contents पता होना इसलिए ज़रूरी है. जो accessory nerve है, it's going right across the posterior triangle. अब पता चला जो supraclavicular lymph node का ग्रुप है उसकी बायोप्सी करते करते ये नर्व डैमेज कर दिए. नर्व डैमेज करेंगे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे. अभी एक क्लिनिकल केस डिस्कस भी हम करेंगे कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं. नाउ supraclavicular lymph nodes are commonly enlarged because of tuberculosis, Hodgkin disease, other malignancies, metastatic malignancy हो सकती है from breast or any other part of the chest. This is important. So if lymph nodes are involved, you have to do the block dissection of the neck. Now a cervical rib is another problem जो हमने upper limb में भी discuss किया था. May compress the second part of the subclavian artery, and this is basically discussed in upper limb videos anyways. तो यहाँ पे मैं इसको leave करता हूँ. Elective arterial surgery of common carotid artery is done for aneurysm. So aneurysm is another problem जो carotid आर्टरी का मसला है, और कैरोटिड आर्टरी को अप्रोच करने के लिए वन हैज टू गो थ्रू द ट्रायंगल्स ऑफ द नेक. इसीलिए ये सारे स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या क्या चीजें मौजूद हैं, वरना डैमेज करेंगे. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी मे गेट कंप्रेस्ड बाय स्केलेनी एंटीरियर मसल. दिस इज अ वेरी रेयर थिंग, बट समटाइम्स इट मे हैपन दैट देयर आर शॉर्ट स्केलेनी एंटीरियर मसल एंड इट मे कंप्रेस द सेकंड पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी. ओके, ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर ये चैप्टर खत्म करते हैं. अ मिडिल एज्ड वुमन
had a deep cut in the middle of her right posterior triangle of the neck. किसी वजह से middle of her right posterior triangle of the neck में कट लग गया. There is bleeding and it was arrested and wound was sutured. Bleeding हो रही थी, उसको suture कर दिया. The patient later felt difficulty in combing her hairs. अब ये फीमेल में तो बड़ा मेजर मसला हो गया भाई, बाल कंघी नहीं कर पा रही, कॉम्बिंग हर हेयर्स में प्रॉब्लम है. और पहले क्या इशू था वो इन्होंने बता दिया. व्हाट इज द ब्लड वेसल विच वॉज मोस्ट लाइकली सीवियर्ड, यानी कौन सी ब्लड वेसल कटी होगी जो इतनी सारी ब्लीडिंग हुई. एंड व्हाई डिड द पेशेंट हैव डिफिकल्टी इन कॉम्बिंग द हेयर. इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बेसिकली. कह ये रहे हैं कि जो पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ नेक है, लुक एट द डायग्राम, दिस इज द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक, या इस डायग्राम पे देखते हैं, उसके मिडल में यहाँ पे कट लग गया. अब मिडल में कौन सी ब्लड वेसल है ऊपर ऊपर जो डैमेज होगी और ब्लीडिंग होगी? एक्सटर्नल जुगुलर वेन. अब ये जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन है, इसके आसपास बहुत सारी नर्व्स हैं, और ऑब्वियसली इस पेशेंट को इस पूरे एपिसोड के बाद किसी एक मोटर फंक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है, और वो मोटर फंक्शन है कॉम्बिंग द हेयर्स. अब आपको देखना ये कि जो सारी यहाँ पे नर्व्स मौजूद हैं, इनमें से कौन सी नर्व्स है जो कॉम्बिंग द हेयर की मोटर एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है. देखो ज्यादातर तो यहाँ पे कुटेनियस नर्व्स हैं. सो कुटेनियस नर्व्स का कॉम्बिंग द हेयर के साथ, मोटर फंक्शन के साथ कोई डायरेक्ट ताल्लुक बनता नहीं है, लेकिन एक इसमें नर्व मौजूद है, एसेसरी नर्व. ये जो एसेसरी नर्व है, इसके बारे में जरा सोचिए, इसके बारे में थिंक अबाउट, इसकी सप्लाई किधर किधर है. एसेसरी नर्व कहाँ सप्लाई करती है? एसेसरी नर्व सप्लाइज ट्रेपीजियस मसल, और ट्रेपीजियस मसल इज रिक्वायर्ड फॉर एबडक्शन. और एबडक्शन का मतलब क्या है कि हाथ ऊपर उठाना है, स्कैल्प तक लेके जाना है, और स्कैल्प तक ले जा करके एबडक्शन करके कॉम्बिंग करनी है. सो दैट इज अ कंबाइंड फंक्शन ऑफ ट्रेपीजियस एंड सेरारिस इंटीरियर. नाउ बिकॉज the accessory nerve is supplying trapezius, or accessory nerve is present right in the middle of the neck, so there is a possibility कि accessory nerve damage हुई है, और accessory nerve damage होने की वजह से trapezius damage हुआ है, और trapezius damage होने की वजह से ये patient हाथ ऊपर उठा नहीं पा रही, abduction नहीं कर पा रही. So that's the solution to this particular clinical problem. Okay, so that's all about the posterior triangle of the neck. इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मालूम हो इसकी बाउंड्रीज क्या हैं, इसके कंटेंट्स क्या हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, रूफ एंड फ्लोर एंड इंफीरियर बाउंड्री, और इसके साथ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल सिचुएशंस क्या हैं. दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर. आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ.